at the end of season of rain, it is really joy again. Because today the spirit of our founder, Saint Anthony Mary Claret, is running in our vein. This auspicious day is not just simply a gain, but this day is full of grace and gain. As we are going to celebrate the Diwali, the Feast of Light, but do you know why we celebrate this Feast of Light? Because our Lord Jesus Christ is the real light. And to spread everywhere this love light, Claret worked tirelessly day and night. This is why today whole world is bright. Claret, Claret, Claret was born at village Salem. He was molded with plenty of talents, which he used only for Jesus Christ. संत अंतोनी मेरी क्लार्ट का था छोटा कद, पर ईश्वर के राज में कार्य करने हेतु मिला था उसे आर्च बिशप का महान पद. Yes, Claret was short in stature, but he was a great God's creature. He was a great word of God preacher. Indeed, he was a true God's messenger. Claret was son of Immaculate Heart of Mary, was filled with God's love and mercy. He was really a great missionary. Aim of his mission was only for the God's glory. Claret was a true Israel, to find out the lost sheep of Israel. To preach the gospel, he walked mile and mile. That is why today whole world is in smile. Claret knew, practiced and preached the word of God, which fell in the hearts of people as sharp sword. To hear his preaching, nobody used to be bored. Really, Claret used to preach the word of God as our Lord. जब क्लार्ट था जवान हट्टा कट्टा छोकरा, तब वह किसी से नहीं करता था ईर्ष्या द्वेष और लड़ाई झगड़ा. जैसा भी मौसम होता था, चाहे गर्मी बरसात या जाड़ा, वह गिरजा जाने से नहीं करता था कोई भी नखरा. सचमुच उसका सोच विचार था बहुत तगड़ा. हाँ, छोकरा क्लारेट था एकदम मस्त तगड़ा. In his missionary journey, nothing was in change. Walked through jungle and rocky mountain, nothing prevented him, neither sunshine nor rain, because of love of God was running in his vein. क्लार्ट था जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग, जैसे सांसारिक माया मोह लालसा नहीं कर सकती थी तंग. दुनिया की कोई भी दुश्मन उसके मिशन कार्यों को नहीं कर सकती थी भंग, क्योंकि प्रभु यीशु एवं माता मरिया थे उसके संग. हाँ, क्लार्ट था माता मरिया और यीशु का अभिन्न अंग. टू प्रीच द गॉस्पेल, क्लार्ट was never silent. As a missionary, he was never arrogant. That is why he is called a great saint. If I go on narrating all virtues and talents, surely you will faint. क्लार्ट था कलीसिया का एक टिमटिमाता तारा, लाने कलीसिया में आशाओं और खुशियों का सवेरा, बनाने सबको ईश्वर का बेटा बेटी अति प्यारा दुलारा, प्यार का दीपक जलाने या संसार सारा. हाँ, क्लार्ट था दिवाली जैसा एक चमकता सितारा. As a missionary, he was a great devotee of Mother Mary. He recited rosary thrice a day daily, and he did it with great devotion and piety. For him, after Jesus, everything was Mother Mary. Claret lived and died for God's kingdom. In his missionary journey, he took rest and entertained seldom. Tirelessly, he worked for soul's freedom. Jesus was only his source of wisdom. संत क्लार्ट था एक महान और पवित्र इंसान. गरीब धनी, पापी धर्मी, काला गोरे सबको समझता था ईश्वर का संतान. उसके लिए सभी इंसान थे जैसे यीशु भगवान. इसी वास्ते वह सबको प्यार करता था एक समान.
इसी वजह प्रभु यीशु उसे दिया था वरदान ही वरदान। हाँ, यीशु क्लार्क को बनाया स्वर्ग राज्य में धन्य महान। सेंट क्लार्क is Clarissan congregation founder, was really a great all-rounder, means preacher, writer and church leader. If I go on hiding, you will simply wonder. Yes, rose is a beautiful flower which lives only 1 hour. But Clyde is our Holy Father, whose mission was very power, which will live in our church and in our hearts forever. ख्रिस्त में भाइयों बहनों, सबको जय यीशु एवं खुश परम। हमारे लिए आज खुशी और उल्लास मनाने का दिन है, क्योंकि आज क्लार्सन धर्म समाज के संस्थापक संत अंतोनी मेरी क्लार्क का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संत अंतोनी मेरी क्लार्क का था बहुत छोटा कद, लेकिन ईश्वर के राज में मिशन कार्य करने हेतु मिला था आर्च बिशप का महान पद। संत अंतोनी मेरी क्लार्क का जन्म स्पेन देश के एक छोटे से ग्राम सालेंट में सन 1807 ईस्वी में हुआ था। क्लारेट दुनिया का हर कोना कोना जाना चाहता था एवं दुनिया का हर छोटा बड़ा काम करना चाहता था, और यह सब केवल और केवल ईश्वर की बड़ाई के लिए एवं आत्माओं को बचाने हेतु के लिए करना चाहता था। संत अंतोनी मेरी क्लारेट जहाँ कहीं भी जाते थे और जो कुछ भी करते थे, वह अपने साथ 3 चीजों को लेकर जाते थे, अपने साथ 3 चीजों को रखते थे। पहला रोजीमाला, दूसरा पवित्र बाइबल और तीसरा प्रभु यीशु का संग। संत अंतोनी मेरी क्लारेट माता मरिया का महान भक्त था। माता मरिया और क्लारेट एक सिक्का का 2 पहलू के समान थे, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। क्लारेट माता मरिया को बेहद प्यार करता था, इसलिए क्लारेट कहा करता था, माता मरिया मेरे लिए सब कुछ है यीशु के बाद। और यही वजह है कि वह माता मरिया का नाम अपने नाम से जोड़ दिया था। इतना ही नहीं, क्लार्सन धर्म समाज की स्थापना माउंट कार्मेल के पर्व के दिन किया था, और धर्म समाज का नाम भी द सन्स ऑफ द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी रखा, अर्थात निष्कलंक माता मरिया के हृदय के पुत्र रखा, और धर्म समाज को माता मरिया के संरक्षिका में रखा। सचमुच क्लार्क माता मरिया के महान भक्त थे। दोनों एक सिक्का के 2 पहलू के समान थे। जब कभी क्लार्क किसी मुसीबत या किसी समस्या से उबरा या बचा, तो बचने का श्रेय क्लार्क केवल माता मरिया को दिया। सेंट एंटोनी मेरी क्लार्क was great servant of God, say great servant of word of God. क्लारेट इस वचनों का महान सेवक था। क्लारेट रोज माता मरिया के भांति इस वचनों को सुनता और पढ़ता था, फिर पढ़ सुनकर मनन चिंतन और विचार किया करता था, फिर मनन चिंतन कर अपने मन और दिल में संजो कर रखता था, फिर उसे अपने दैनिक जीवन में लागू किया करता था। संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 और लूकस अध्याय 4 पद संख्या 4 में देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाली हर वचन से जीता है। और यह हकीकत बात को क्लारेट अच्छी तरह से जानता और समझता था, इसलिए क्लारेट रोज इस वचनों को पढ़ता था, मनन चिंतन करता था और अपने जीवन में लागू किया करता था। यही वजह है कि क्लारेट जहां कहीं भी जाता था, वह अपने साथ बाइबल को अपने साथ लेकर जाता था। क्रोधियम के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में देखते हैं, जहाँ संत पौलुस कहते हैं, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस सच्चाई को भी क्लारेट अच्छी तरह से जानता था, समझता था कि उसका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है।
क्लारेट अपने शरीर को यीशु का संदूक समझता था, क्योंकि क्लारेट प्रतिदिन प्रभु यीशु का शरीर ग्रहण कर उसे अपने शरीर में बना संदूक में रखता था। क्लारेट का यही सोच विचार और विश्वास हमेशा क्लारेट को पवित्र और शुद्ध रखता था। कहा जाता है क्लारेट हमेशा घड़ी घड़ी बारंबार अपनी छाती की ओर देखा करता था, अपनी छाती को देखता था, क्योंकि वहां पवित्र संदूक था जहां प्रभु यीशु विराजमान रहता था। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में देखते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और आप लोग मेरी दाखलता की डालियां हो, जिसमें मैं निवास करता हूँ और जो मुझ में निवास करते हैं वही फूलते फलते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस हकीकत बात को भी क्लारेट अच्छी तरह से जानता था और समझता भी था कि उसका रिश्ता और नाता अगर यीशु से रहेगा और उसका संबंध अगर यीशु से मजबूत रहेगा तो वह फलेगा फूलेगा। यही वजह है कि क्लारेट हमेशा यीशु से अपना संबंध मजबूत बना। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद 26 में देखते हैं, जहाँ ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप रचा, हम मनुष्यों को अपने रूप रंग में बनाया। जैसा ईश्वर है ठीक वैसा ही अपने जैसा ईश्वर ने हमें बनाया है। इस प्रकार से ईश्वर हमारा पिता बना और हम सभी मनुष्य ईश्वर के संतान अर्थात ईश्वर के बाल बच्चे, बेटा बेटी एवं भाई बहन बने। चाहे हम धनी हो या गरीब हो, चाहे हम काले हो या गोरे हो, चाहे हम झारखंडी हो या उड़िया हो, चाहे संथाली या बंगाली हो, हम सब कोई ईश्वर के बाल बच्चे और भाई बहन हैं। हम सदमती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 5 पद 5 में देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे लोग जो नम्र हैं, सारा धरती उन्हीं का है। अर्थात धन्य है वे जो लोग जो नम्र विनम्र हैं, वे धरती की सभी चीजों को प्राप्त करेंगे। संत अंतोनी मेरी क्लारेट के लिए नम्रता सब गुणों का आधार है। नम्रता पेड़ की जड़ के समान है। क्लारेट कहते हैं, अगर किसी पेड़ में लंबी गहरी मोटी तगड़ी जड़ ना हो और भारी वर्षा आ जाए, भारी आंधी तूफान चले, तो निश्चय वह पेड़ गिर जाएगा, ढह जाएगा। इसी भांति अगर किसी इंसान में जड़ रूपी नम्रता का गुण ना रहे और उसके जीवन में आंधी तूफान रूपी भारी वर्षा हो जाए, समस्या तकलीफ आ जाए और कोई उसे भला बुरा कह दे, तो वह इंसान भी बिना जड़ वाले पेड़ के समान जीवन में और समाज में गिर जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो नम्रता से फायदा ही फायदा है। नम्रता से हम छोटे नहीं बल्कि महान बन जाते हैं। नम्रता से हम किसी के दास नहीं बल्कि हम सबके हीरो बन जाते हैं। संत अंतोनी मेरी क्लारेट कहते हैं, अगर हम तालाब के किनारे खड़े होकर तालाब में रोटी की छोटी छोटी टुकड़ों को डालें, तो तुरंत तालाब की सभी छोटी बड़ी मछलियां रोटी की टुकड़ी खाने के लिए एकत्रित हो जाएंगी। लेकिन वही स्थान में यदि हम ईंट या पत्थर का टुकड़ा फेंक दे, तो तुरंत सभी छोटी बड़ी मछलियां वहां से नौ-दो गारा हो जाएंगी, अर्थात भाग जाएंगी। ठीक इसी भांति अगर हम नम्र विनम्र होंगे या बनेंगे, नम्रता विनम्रता पूर्वक दूसरों के सामने पेश आएंगे, तो निसंदेह सभी छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, नौजवान सभी हमारे पास आएंगे, हमारी बातें सुनेंगे, हमसे मित्रता बनाएंगे, अंततः हम हीरो बन जाएंगे। लेकिन वही स्थान में यदि हम लोगों के सामने कठोरता, घमंडता, अहंकारिता से पेश आएंगे, यदि हम लोगों के साथ गाली गलौज करें, तो निस्संदेह सभी छोटे बड़े बच्चे, जवान बूढ़े सभी लोग हमसे दूर भागेंगे, हमारी कोई नहीं सुनेंगे, हमसे कोई मित्रता नहीं करेंगे और अंततः हम जीरो बन जाएंगे। तो भाइयों बहनों, आइए आज इस शुभ दिन हम क्लारेट की मध्यस्थता से प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम भी
संत अंतोनी मेरी क्लार्क के समान माता मरिया के भक्त बने, प्रभु वचन के सेवक एवं प्रचारक बने, क्लार्क के समान नंबर बिनंबर इंसान बने, क्लार्क के समान अपने दिल को ईश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए। दूसरे शब्दों में कहें, आइए क्लार्क की भांति एक दूसरा यीशु ख्रिस्त बने। जय यीशु।